सर मैं लैपटॉप मैम मैं लैपटॉप में से कैसे Yes, yes. Yeah, I'm able to hear. मैम मैंने लैपटॉप में पीपीटी बना दी थी अपना उसमें से कैसे लैपटॉप में लैपटॉप में पीपीटी बना दी तो उसमें से कैसे भेजूं गूगल फॉर्म में। पीपीटी का आपको देखो ना, पीपीटी के बाजू में एक शेयर लिंक वाला ऑप्शन, वहां पे उस लिंक को लेके आप गूगल फॉर्म में बस मैम ओटीजी से कर लेंगे। गूगल फॉर्म में आएगा, गूगल फॉर्म में आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप अपलोड हो, वहां पे 3-4 मैंने बाइफरकेशन बनाया, वहां फाइल अपलोड करके ऑप्शन आएगा, तब वहां से कर लेना। अब जैसे ही आप गूगल में जाके वो फॉर्म खोलोगे, फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो अपने लैपटॉप से डायरेक्ट फ्रॉम डिवाइस करके आएगा, तो आप अपलोड कर लोगे। ठीक है, ओके मैम। So we will continue with the chapter today. Good morning, ma'am. Morning. And in the next class, I will tell you the marks. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good Good morning. morning, ma'am. In the next class, I will tell you the. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. So art integration work also you have to complete. That's why I'm busy in the art integration work only. Okay. So आप जल्दी जल्दी सबमिट कीजिए। आपको पता है लास्ट डेट कौन सा? What is the last date? 30 January. मैम सबमिटेड। That means what up to Saturday, that after Saturday I will disable the form. No, like I will disable the form after the Saturday. Okay, so please submit it quickly. आपको बहुत टाइम मिला, आपको हाथेली के बाद ये सॉरी PT2 के बाद बहुत टाइम था, आप आराम से उसको कंप्लीट कर सकते थे। एंड मैक्सिमम मिनिमम 8 स्लाइड होनी चाहिए, ज्यादा तो स्लाइड होनी नहीं। ओके, क्लियर? So I will not waste too much time on that. So art integration work you have to submit. Okay, after submitting art integration work, we will see that who has not submitted. And जिसने इसने art integration work submit नहीं किया है, internal marks पूछ जाना, portfolio आपका बनेगा। 9th and 10th is having portfolio, you know ना? Or not? पता है ना portfolio है आप लोगों का? Yes or no? Are you able to hear or not? यस मैम। मैम व्हाट? आप लोगों का portfolio Okay, okay, leave. I will not stress too much on that. आपको बस इतना करना है कि आपको आर्ट इंटीग्रेशन वर्क पूरा करना है, okay? And आर्ट इंटीग्रेशन वर्क करना है। Now let's move to the PPT. Okay. So आपका लास्ट क्लास में मैंने कंसंट्रेशन तक करा दिया था, isn't that? कंसंट्रेशन तक आपका मैंने पूरा करा दिया था। Let's move to the next. Okay. Up to concentration it was over. The next is what is suspension. Okay. Suspension on wait. So here what is suspension? Suspension आपको पता है solution suspension और colloid में difference क्या है? In suspension, like your example, if I am mixing chalk in water, let me show in the Google also. Wait, I will show you. Just 1 second, I will show you the. If it is shown in the activity form, that will be much better. So suspension में जैसे हमने chalk water का example लिया है, या फिर any other example. Can you tell like any other example you want to tell me or share with me for suspension? Any? Can you share with me the example of? I am telling you the example of chalk and water. Can you tell me any other example? ऑयल एंड वाटर। हाँ? ऑयल एंड वाटर। LM and water. LM पानी में तो घुल जाता है ना? नो मैम, मैम ऑयल ऑयल। Oil. Okay. Any other? मैम सैंड एंड वाटर। Sand and water. सैंड एंड वाटर। Okay. Sand and water will not be a suspension. मैम but it can't mix ना। It can't mix. It is a heterogeneous mixture. Wait, I am showing. Okay.
There are so many solution, suspension and colloids. Are you able to see the screen now? Ma'am, PPT screen is showing. Wait, Yes, ma'am. just one. Now it will be visible. Yes, ma'am. Or a video of suspension, Yes, solution, ma'am. and colloids with me, Will Nye, the science guy, and Sean. First up is solution. Solution suspension के example Two or देखेंगे. more substances, always transparent and like it pass through with no scattering. Solution हमने last class में देख लिया था. Solution में हमने क्या देखा था कि solution में वो what is that in the solution कि वो एक जैसा दिखता है. नमक को पानी में घोलने के बाद आप बता नहीं सकते कि नमक के particles कहाँ है, water के particles कहाँ है. That means it was homogeneous. और वो कैसे दिख रहा था? Transparent. आप उसके आर पार देख सकते थे. That's why it is transparent. And जब उसमें light pass करे जाएंगे तो वो उसमें कोई scattering नहीं होगी. तो वही चीज हमें देखना है इस बार. Here's an example of a solution. He has taken the example of solution. We'll be mixing sugar and water. Is taking the example of sugar and water. Then for solution, light can easily pass through the cup. Wow, that's amazing, Sean. All right, next up is suspension. A suspension is when Okay, suspension में एक difference क्या रहेगा solution से कि solution से suspension में आप particles को identify कर सकते हैं, separate कर सकते हैं कि solute का particle कौन सा है और solvent का particle कौन सा है. mixture containing large dispersed solid particles that can settle out or be separated by filtration. Example suspension would be combined mixing oil and water. For suspension, the particles easily separate and light can easily pass through. All right, and the last Wait, one huh? is colloid. Solution, suspension और colloid में आपने क्या देखा? Oil and water का example देख लिया. तो oil and water में actually होता क्या है कि suspension में basic difference क्या रहता है solution से कि solute के particles जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं किससे? Solvent के particles. यानी oil को अगर आप पानी में डालोगे तो oil अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा. अब इसी example से आप मुझे एक और property बता सकते हो suspension की. क्या सब प्रॉपर्टी बता सकते हो कि अगर मैं ऑयल और वाटर को साथ में रखूं तो ऑयल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा. क्या एग्जाम ये कौन सा प्रॉपर्टी है? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? चौक को पानी में डाल के रखोगे तो चौक अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा. ये प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी कौन सी है? इफ यू आर कीपिंग Heterogeneous. heterogeneous, okay. Any other one more property? Suspension. No. Bhavik? Yes, ma'am. Can you tell me which property is reflected in this case? If you are mixing any mixture and it is getting separated after few minutes, which property it is reflecting? एक तो heterogeneous हो गया, ये पता चल गया. और one more property. वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अगर कोई मैम स्टेबल. लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, अगर कोई मिक्सचर को थोड़ी देर छोड़ दो और वो सेपरेट हो जाए तो वो अनस्टेबल कहलाता है, और जो सेपरेट नहीं होता
वो स्टेबल होता है। आपने सस्पेंशन को थोड़ी देर रख दिया तो सस्पेंशन के पार्टिकल सेपरेट हो गए, दैट मीन्स चौक और पानी अलग हो गया, तो वो क्या हो गया, अनस्टेबल। किसी भी मिक्सचर को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो और अगर वो अलग अलग हो जाए उसके पार्टिकल्स अपने आप बिना कुछ किए, तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, अनस्टेबल मिक्सचर कहलाएगा। सो द सस्पेंशन इज एन अनस्टेबल मिक्सचर, इट इज हेट्रोजीनियस, इट इज अनस्टेबल। ओके, एनी अदर हाँ, एक और एग्जांपल, एक और प्रॉपर्टी आप इसी में से बता सकते हो। अब सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं, इससे एक और प्रॉपर्टी मिलती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, सोचो। आप और क्या कर सकते हो, इसको हम छान के अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन। यस, क्या हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन। यस मैम। सिंपल, यानी दैट मींस सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। एनी अदर एग्जांपल, और कोई, और कोई? मैम एक ऐसा होता है ना जिसमें अपन उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो पहले बॉईल हो जाता है, वो पहले वेपर बन जाता है, फिर लास्ट में वो उससे भी सेपरेट होता है। वो तो सेपरेशन मेथड हो गया, मैंने फिल्ट्रेशन की बात करी। क्या फिल्ट्रेशन से सोल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो क्या, सिंपल फिल्ट्रेशन, सिंपल सा छानने वाला प्रोसेस, सिंपल सा छानने वाला प्रोसेस, उससे आप सोल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हो। और कोई प्रॉपर्टी जो आपको पता हो? और कोई प्रॉपर्टी? The scattering of light, that means the path of the light will be visible in the suspension. क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमको दिखाई दे रहे, इट इज विजिबल टू यू, यानी पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े हैं। और अगर कितने बड़े हैं, पार्टिकल साइज देखोगे तो मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर या 10 to the power -9 मीटर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। अब इतने बड़े बड़े पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे तो वो स्कैटरिंग से लाइट भी दिखेगी, इसलिए जब आप कोलॉइड सस्पेंशन के में टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कराओगे तो वो आपको पाथ रिफ्लेक्ट करेगा, जस्ट लाइक नाउ। वेट, Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... all of you are able to see this now, solution suspension and colloid दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, हट गया. Everything is visible now, everything is clear now. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So basically इस बच्चे ने क्या किया, 3 बीकर लिया, पहले बीकर में उसने क्या डाला है, what he has added, what he has added in the first Sugar. beaker, Sugar. and it is reflecting what, solution suspension. Sugar और water क्या बना रहा है, what it is making, सॉल्यूशन। solution. सॉल्यूशन।
सेकेंड बीकर में उसने क्या डाला है? चॉक और वाटर, वो जो कि सस्पेंशन का काम कर रहा है। थर्ड बीकर में उसने डाला है मिल्क और वाटर, जो कि कोलॉइड का काम कर रहा है। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है? अब ये लाइट चली गई। अब बच्चे ने क्या किया? टॉर्च चलाना की, यानी ये क्या बताने जा रहा है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा है। So what is observing in the first beaker? What is observed in the first beaker? It's completely mixed. पार्टिकल्स तो कंप्लीटली मिक्स हो गए, लेकिन लाइट क्या है? लाइट दिख रहा है? लाइट का पाथ तो दिख रहा है क्या? येलो कलर का पाथ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे, तो उनका स्कैटरिंग भी बहुत कम होगा। तो स्कैटरिंग कम होगा तो आपको लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। बट यही चीज अगर दूसरे में की जाए, सस्पेंशन में की जाए, अब इसमें देखो दिखाई देगा पाथ। इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है? इसमें लाइट का पाथ दिख रहा है ना, इसमें बीकर के अंदर। Yes, ma'am. स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इज डन बाय द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के साइज बड़े बड़े हैं, इनका साइज 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। ओके, दिस इज व्हाट सस्पेंशन। Just wait a second, beta. I just video on. Just 1 second. Students, can you hear me? This is Shakti. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, did you get the message of PCRA quiz being conducted? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why didn't you register? I have received only 4 to 5 names. You know how to give the details, right? Anju ma'am has sent you the format. You need to send your name, your date of birth, mobile number, email address, and class and section. So till when will I get your details? Ma'am is asking something, isn't that? Yes, ma'am. Students, get it very clear. You have your internal 20 marks and that's completely into my hands. I won't even tell you, you won't be able to ask me even, I'll mark you out of 15. Will that be okay with you? You will lose a large amount of percentage for that. When there's a message being given to you, to register yourself for something, you need to do it. The number of enrollments from class 7 is much higher than your class. Are you not confident about yourself that you can do well in the quiz? Is it something like that? Are you confident or not, class 9?
Class 9, I'm asking you something. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So will I get your names? Yes, ma'am. I want your names. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You know the format: name, class, section, date of birth, email address, and a valid phone number, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. we have to send to you. Yes, you can send it to me or Anju ma'am. Anyone. Yes. Okay? Whoever number you're having. Yes, ma'am. And Okay, share ma'am. it with the record. I'll mark you out of 15 and that's very much confirmed. Okay? Don't take it lightly. Okay, so continue with your chemistry class now. Hello. Who is that? Huh? Now again coming back to the class. So this is the suspension. Suspension में क्या है? Suspension के particles का path आपको दिख रहा है क्या beaker के अंदर? तो ये क्या है? Scattering of the light is done that because scattering of the light is done because they are particles are what? Bigger. Okay, they are bigger. That's why they are able to scatter. कितने बड़े हैं? More than 100 nanometer. Okay. And this scattering of the light is called as Tyndall effect. That means Tyndall effect is not visible in the solution, but it is visible in the suspension. This stability I have already told you कि ये देखो ये chalk powder के पार्टिकल सोल्यूशन को उसने थोड़ी देर बच्चे ने छोड़ दिया तो क्या हुआ थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल्स उसको नीचे जमे हुए मिले तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो मिक्सचर है वो कैसा है अनस्टेबल मिक्सचर है। अब उसके पास तीसरा बीकर था क्या मिल्क और वाटर में भी जैसे ही उसने लाइट पास किया तो उसको उसमें भी क्या दिख रहा है लाइट का पाथ दिख रहा है। Okay, that means Tyndall effect is visible in colloid also. अब ये जो है अब देखने से हमको कैसे दिख रहा है एक भी पार्टिकल्स नहीं दिख रहे लेकिन ये यानी कि होमोजेनस होना चाहिए लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है पार्टिकल्स पूरे अलग अलग दिखते हैं यानी कि ये दिखने में होमोजेनस है बट एक्चुअली है क्या ये हेट्रोजीनस। कोलाइड क्या है एक्चुअली हेट्रोजीनस। एंड इनका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर्स रहता है या 1000 लिखा है इट इज बिटवीन 100 नैनोमीटर्स 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। तो अब आप बताओ कि मेरे को आपने क्या क्या प्रॉपर्टीज इसमें से समझ में आई आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलॉइड की व्हाट प्रॉपर्टीज यू आर वेयर एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। आप डिफरेंस बताओ मेरे जितना आपको समझ में आया उतना व्हाट डिफरेंस यू अंडरस्टूड बिटवीन द सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड। भूमि स्टार्टिंग फ्रॉम यू। Suspension is a suspension ma'am. Suspension is a heterogeneous mixture, and colloid is a heterogeneous mixture. Solution homogeneous mixture. Okay, Bhavik. Yes, ma'am. Second difference you tell. Homogeneous heterogeneous वाला भूमि ने बता दिया आप बताओ next difference. Solution doesn't show Tyndall effect, but suspension and colloid show Tyndall effect. Okay, good. Bhavik, Lunia. Third difference you tell. Third difference. Are you there or not, or just for attendance here? Left the class already. Bhavya. Bhavya, are you there or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, the colloid shows the Tyndall effect
and suspension. वाला डिफरेंस हो गया नहीं एनी अदर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस वाला हो गया टिंडल इफेक्ट हो गया एनी अदर डिफरेंस यू टेल Ma'am, colloid is what is colloid it is stabilized mixture. Ma'am, colloid is stabilized mixture and suspension. That the chalk powder mixture was the unstabilized mixture. and solution And the solution is also the stabilized mixture. okay solution is stable suspension is unstable and colloids are quite stable okay and next Chelna Okay, ma'am. Chelna next difference can you tell me Yeah. Ma'am, in suspension, Tyndall effect is there, and in colloid also, and in solution, Tyndall effect is not. what you are telling Ma'am, in solution, we cannot see Tyndall effect. Tyndall effect हो गया बेटा 3 already over Ma'am, particle size हो गया है ma'am, in colloid, there is one particle size 1 nanometer to 100 nanometer. yes or And in solution, and suspension, in suspension, particle size is greater than. I don't know about solution. 100 जो 1000. अगर आपको कोलाइड याद हो गया तो आपको सस्पेंशन और सोल्यूशन याद करने की जरूरत नहीं है आपने कोलाइड का क्या बोला बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर तो सस्पेंशन का है Yes, ma'am. 100 नैनोमीटर सोल्यूशन का है लेस देन 1 नैनोमीटर Yeah. okay Okay, ma'am. Yes, ma'am. one more property I will tell Harit can you tell me any other property which is missed here Harit Yes, ma'am. Can you tell me one more property which is missed here? छूट गया है बताया नहीं अभी तक किसी ने किसी ने भी अभी तक से उसके Ma'am, may I tell? yes tell Ma'am, may I tell? Ma'am, the particles of colloid can be passed through filter paper. okay separation by filtration okay particles of colloid And are you telling particles of colloid yes, ma'am. particles of colloid simple filter paper Yes, ma'am. Can be passed. मिल्क और पानी को देखो मिल्क और पानी को तो आप घर में भी ऐसा कभी कभी दूध में कचरा होता है तो आप लोग वो छान लेते हो है कि नहीं तो कभी छानता है कि दूध और पानी अलग हो जाता है क्या दूध वाला तो पानी मिक्स करके लाता है नहीं होता ना दैट मीन्स यू कांट सेपरेट इट बाय फिल्टरेशन सिंपल फिल्टरेशन हायर क्वालिटी का फिल्टरेशन टेक्निकल आता है यस मनन गुड पॉइंट यू गॉट ओके सो अभी बताने को तो बेसिकली तीन पॉइंट्स और है अभी एक पॉइंट ये था कि सोल्यूशन को आप सेपरेट सिंपल फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते सस्पेंशन को आप सिंपल फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हो कोलॉइड को आप सिंपल फिल्टरेशन से सेपरेट नहीं कर सकते तीसरा एक और चीज था क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सस्पेंशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है जबकि सोल्यूशन जो रहता है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर है और एक और चीज जो सब किसी ने नहीं बताई कि दिखता कैसा है भाई ट्रांसपेरेंट है ओपेक है ट्रांसलूसेंट है जब आप सोल्यूशन को देखते हो बार बार देख सकते हो दैट मीन्स इट्स अपीयरेंस इज ट्रांसपेरेंट लेकिन चॉक पाउडर को अगर आप पानी में घोलोगे तो वो क्या हो जाता है ओपेक कोलॉइड सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा बेटा साक्षी यू विल नॉट सी द सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट यू विल सी द सस्पेंशन एंड कोलॉइड ओके सो यहाँ पे क्या होगा सोल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है और सस्पेंशन जो होगा वो ओपेक होगा और कोलॉइड जो रहेगा
वो आपका ट्रांसलूसेंट रहेगा. ट्रांसलूसेंट मतलब धुंधला टाइप. Okay, is it clear? Sakshi, it's okay. So these are the basic important differences between solution, suspension and colloids. Okay, solution, suspension और colloids का difference याद रखना. Example आपको ये difference पूछता है category के basis पे. As on the basis of transparency, on the basis of stability, on the basis of separation by filtration, on the basis of particle size. तो ये जो property आपने बताई है उसी को बस categorize करके पूछ लेगा. जैसे particle size के ऊपर पूछ दिया, stability के basis पे पूछ दिया, separation by filtration के basis पे पूछ दिया, या transparency के basis पे, या appearance के basis पे. तो ये 4, 5, 6 क्राइटेरिया बना के आपको सेपरेट क्या बोलेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड. ओके, सो आफ्टर दैट वी विल सी दैट नेक्स्ट. सो सस्पेंशन तो हो गया, पार्टी प्रॉपर्टीज भी हो गई कोलॉइड की. अब इसमें आता है नेक्स्ट टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट बेसिकली हमको सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? कोलॉइड में मिलता है. सस्पेंशन में कभी मिलता है कभी नहीं, क्योंकि अगर सस्पेंशन में ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, बड़े बड़े ज्यादा कोएगुलेट हो जाए, कोएगुलेट होते समझते हैं जम जाता है, तो वो जो है वो हमको कभी मिलता है कभी नहीं मिलता. बट कोलॉइड्स यू कैन ऑलवेज सी द टिंडल इफेक्ट. ओके, सो टिंडल इफेक्ट इज का डेफिनेशन याद रखना कि टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली व्हाट इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स सो द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल टू यू. तो ये तो आपको देखिए, तो टिंडल इफेक्ट तो सबको घर में दिखता ही होगा. घर में जब सुबह सुबह रोशनी आती है खिड़की से, तो आपको वहां पे रोशनी का में क्या ऐसा बीम ऑफ लाइट दिखता है. ये क्या है? टिंडल इफेक्ट है. पेड़ों के बीच से जो रोशनी आती है, सूरज की जो रोशनी आती है, वो भी क्या है? टिंडल इफेक्ट है. Okay, these are the example of the Tyndall effect which we are observing commonly in the daily life. Okay. Next, classification of colloids. The screen was visible to you or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am, visible. Okay, now classification of colloids. Now when I am talking about classification of colloids, colloids को आप dispersed phase और dispersion medium के basis पर classify करोगे. अगर कोई पूछता है कि dispersed phase क्या है और dispersion medium क्या है, okay, what is the dispersed phase and what is the dispersion medium? The dispersed phase is what? A solute-like component. Dispersed phase means solute-like component and dispersion medium means solvent-like component. जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होगा उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे. ये जो है इससे भी सिंपल बता रही है. सोल्यूट लिखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा. जो सॉल्वेंट के जैसे काम करे वो डिस्पर्शन मीडियम है, और जो सोल्यूट के जैसा काम करे वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है. तो सपोज अगर मैंने बोला है कि सॉल्वेंट समझ रहे हो, जिसमें आप किसी चीज को घोलो वो आपका सॉल्वेंट होता है, और जिसको आप घोलते हो वो सोल्यूट होता है. इज इट क्लियर? तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम क्या है? द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट इज अ डिस्पर्स्ड फेज, द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन मीडियम. अब इसी डिस्पर्स्ड फेज और इसी डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे हमको कोलॉइड्स को सेपरेट करना था. ओके, सो लेट्स सी दैट. अब आप कोलॉइड्स को सेपरेट करेंगे. तो सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपको. आप जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका? फॉग का. देखो अब अभी थोड़ी ठंड थी सुबह. फॉग समझ धुंध कोहरा. तो उसमें क्या होता है? कौन किस में स्प्रेड रहता है? कौन सॉल्वेंट जैसा बिहेव कर रहा है, कौन सोल्यूट जैसा बिहेव कर रहा है? क्या कोई बता सकता है? फॉग में फॉग एनीबॉडी? खुशील, कैन यू टेल मी? खुशील Yes, ma'am. कैन यू टेल मी Yes. फॉग में कौन सा डिस्पर्स्ड फेज होता है, कौन सा डिस्पर्शन मीडियम होता है? यानी कि पहले आप बताओ कि सोल्यूट जैसा कौन बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट जैसा कौन बिहेव कर रहा है? आपको पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं? Yes, ma'am. Solute मतलब जो कम और solvent मतलब जो ज्यादा है. अब मैंने फॉग बोला, मेरे मन में धुंध कोहरा है ना, उसमें क्या होता है? क्या ज्यादा रहता है? Yes. Fog.
फॉग में, फॉग कहाँ मिलता है हमको नेचर में? कहाँ मिलता है? पानी के अंदर, क्लाउड्स, हवा में मिलता है, क्लाउड्स, क्लाउड्स में मिलता है, हवा में नहीं मिलता। हवा में मिलता है, यानी हवा ज्यादा हुई। और फॉग किससे बनता है? पानी से। यस मैम, जब ठंड हो जाती है तो ना हवा में वाटर, मॉइस्चर रहता हाँ है, कंडेंस होने लगता है, इसलिए वो हमको फॉग के फॉर्म में दिखता है कि नहीं? यानी हवा ज्यादा है और पानी कम है। गुड हरे, गुड। तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस कौन, डिस्पर्शन मीडियम कौन हुआ? वाटर, Dispersed phase is water, or dispersion medium is? Dispersion medium is? Solvent. Air. Good. So जब कोई Air. जब लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम का काम करे और सॉरी लिक्विड जो है वो डिस्पर्स फेज का काम करे और गैस जो है वो डिस्पर्शन मीडियम का काम करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट, अभी जैसे अभी तो पानी गिर रहा है, देखो बादल जैसे छा गया है ना, है कि नहीं? पानी पानी जैसा हो गया ना, बारिश जैसा हो गया, isn't that? तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब ये क्या एग्जाम्पल है? यहाँ पे अभी जो बारिश हो रही है ये भी तो एग्जाम्पल ही है। किसका किसका एग्जाम्पल है? एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। क्लाउड जो है वो भी एरोसोल का ही एग्जाम्पल है। क्यों? लिक्विड एरोसोल, व्हेन द लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन एयर, लिक्विड जो होता है वो एयर में डिस्पर्स्ड होता है। तो अभी ये जो बारिश हो रही है, बादल छा रहे हैं, ये बादल क्या है? कोलॉइड ही तो है, एक एरोसोल का ही तो टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि बादल क्या है? पानी है। बादल क्या है? पानी है ना। पानी जो एरोसोल इज अ टाइप ऑफ अ कोलॉइड। एरोसोल इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। पहला टाइप ऑफ कोलॉइड मैंने आपको बता दिया, एरोसोल, लिक्विड एरोसोल। उसमें एरोसोल, एयर वर्ड इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि एयर है इसमें, डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो पहला टाइप है इसका लिक्विड एरोसोल, जिसमें आप फॉग का एग्जांपल दे सकते हो, क्लाउड का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? लिक्विड एरोसोल के एग्जांपल है। और क्लाउड इस कैटेगरी में इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लाउड क्या है? पानी है भाई, और वो कहाँ पे है? वो एयर में है। ओके, नेक्स्ट, अब आप गाड़ी चला रहे हो, सपोज आप स्कूल घूमने जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो तो धूल उड़ रही है, बहुत ज्यादा धूल उड़ रही है। तो धूल उड़ने से क्या होता है? डस्ट आता है। डस्ट में क्या होता है? व्हाट इज देयर इन द डस्ट? व्हाट इज देयर इन द डस्ट? क्या होता है डस्ट में? क्या होता है? सॉलिड एरोसोल। सॉलिड एरोसोल। लेकिन होता क्या है डस्ट के अंदर? क्या होता है डस्ट के अंदर? क्या होता है? अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड थिंग, दैट इज अ मिट्टी। जब से ज्यादा धूल, मैंने क्या किसकी बात कर रही हूँ? धूल की बात कर। धूल में क्या होती है? मिट्टी होती है ना। मिट्टी क्या है? सॉलिड है। और वो मिट्टी कहाँ पे घूम रहा है? हवा में घूम रहा है, तभी तो डस्ट क्रिएट हो रहा है। यानी कि डिस्पर्शन मीडियम कौन हुआ? गैस। और डिस्पर्स्ड फेस कौन हुआ? सॉलिड। जब कोई सॉलिड डिस्पर्स फेस का काम करे और गैस डिस्पर्शन मीडियम का काम करे तो वो सॉलिड एरोसोल कहलाएगा। तो दो टाइप के एरोसोल हो गए, एक सॉलिड एरोसोल और एक लिक्विड एरोसोल। दोनों में डिस्पर्शन मीडियम एयर है, मतलब गैस है, लेकिन डिस्पर्स फेस का फर्क है। अगर लिक्विड एरोसोल की बात हो गई तो उसमें डिस्पर्स फेस लिक्विड होगा, और अगर सॉलिड एरोसोल की बात हुई तो उसमें डिस्पर्स्ड फेस कौन होगा? आपका सॉलिड। ओके, अब एक और गैसियस एरोसोल होता है। एरोसोल में